عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یوم شہادت مولائے متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دردناک دن پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سارے مولائیوں کو مولائے کائنات سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت سے پکی اور سچی محبت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا یا شہید مرا۔ حضرات محترم، مراتب مولائے کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بلند و بالا ہیں۔ کون علی؟ جب نبی نے دعوی نبوت پیش فرمایا تو سب سے پہلے ایمان کی گواہی دینے والے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاد کریں، دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرے پر ہلکی سی اداسی ہے۔ قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے آپ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، کیا بات ہے، آپ اداس ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدیجہ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنا سارا مال و اسباب لے کر کے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں میرے سرتاج جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیسے لیے، مولا علی کو بلایا، کہا علی جاؤ بازار چلے جاؤ، دعوت کا انتظام کرو۔ مولا علی گئے، دعوت کا انتظام کیا، تمام لوگ آئے، کھایا پیا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے اٹھے، سارے لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا،
تیسرے دن آپ نے فرمایا دعوت کے لیے، پھر مولا کائنات گئے، دعوت کا انتظام کیا، لوگوں نے کھایا پیا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان دینے کے لیے اٹھے، سارے لوگ اٹھ کر کے بھاگنے لگے۔ قربان جائیں سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو سنو تو۔ لوگوں نے نہیں سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنا وصی کہا، مولا علی کو اپنا ولی کہا، حتیٰ کہ غدیر خم کے میدان پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب پہنچا دو ان لوگوں تک جو ابھی تک آپ نے نہ پہنچایا اور یہ کام نہ کیا، تو سمجھو کہ رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان پر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے سامنے مولا کا اونٹوں کے کجاوے پر کھڑے ہو کر کے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو جواب یہ دیا جائے کائنات میں ایسا کون ہے جس کے مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اس موقع کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، وَأَكْمَلْتُ دِينَكُمْ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اسلام کو دین پسند کیا اور کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ عزیزوں، غور و فکر کا مقام ہے کہ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بدر ہوا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی، اتبا اینڈ کمپنی، ہندا کے مائکے والے، ابو یزید کے ننیال والے، ابو سفیان کی سسرال والے واصل جہنم ہوئے، کفار کی آس نہیں ٹوٹی۔ احد ہوا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لوگوں نے افواہ اڑائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں رہے، لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ مولا متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں موجود رہے۔ معاملہ برابری پر چھوٹا، کفار کی آس نہیں ٹوٹی۔ خندق ہوئی، تمام مارکے ہوئے، صلح حدیبیہ ہوئی، فتح مکہ ہوئی، کفار کی آس نہیں ٹوٹی۔ ان لوگوں نے یہ دماغ لگا رکھا تھا کہ آج
नहीं तो कल हम एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शहीद कर देंगे, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, दीन ख़त्म हो जाएगा। जब सारे हरबे नाकामयाब हो गए, फ़तेह मक्का हो गई, सियासी इस्लाम कबूल कर लिया गया, उसके बाद भी आस नहीं टूटी। ये हुआ कि चलो इतनी उम्र हो गई, आने वाले वक्तों में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक दिन पर्दा फरमा जाएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब हम अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था को लागू कर देंगे। आस नहीं टूटी थी। आस कब टूटी? जब आमिना के लाल ने फर्जंद अबू तालिब मौलाए मुत्तकियान मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गदीर खुम में मौला बना करके पेश कर दिया। काफिरों की आस टूट गई कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जैसा मोहम्मद दुनिया को दे दिया। लोग फतवा दे देंगे कि मजीदी क्या कह रहा है, मजीदी पागल हो गया कि अली को मोहम्मद बता रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, औसत में मोहम्मद है और कुल मोहम्मद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के मौलाए कायनात मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम ज़माना हज़रत इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे मोहम्मद हैं। इसलिए आस टूट गई। बातिल की ताकतों ने हमेशा दीन को मिटाने की कोशिश की। कोई ऐसा मामला नहीं रख छोड़ा जहां पर दीन को मिटाने की कोशिश न की गई हो। और जब भी दीन को मिटाने की कोशिश की गई, सामने अगर कोई घराना सामने आया है तो वो अबू तालिब का घराना सामने आया। शेब अबू तालिब में जब इस्लाम को मुक़य्यद कर दिया गया था, पूरा का पूरा इस्लाम शेब अबू तालिब में मुक़य्यद कर दिया गया था, तो कौन था जो इस्लाम की हिमायत में खड़ा हुआ था? हाँ, वही अबू तालिब थे, जिन्हें कुछ मुल्ला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह काफिर कहते हुए नहीं थकते, और मौलाई जिन्हें मोहसिन इस्लाम कहते हैं। मोहसिन इस्लाम सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में, शेब अबू तालिब में इस्लाम की मदद की जा रही थी। हाँ, वही अबू तालिब जो रात में आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आराम फरमाते हैं वहाँ से आपको हटा देते हैं, दूसरी जगह लिटा देते हैं। फिर दूसरी रोज़ आते हैं, आप वहाँ पर मौला अली को लिटा देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हटा देते हैं। फिर किसी दिन आते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने के बाद कभी हज़रत अब्बास को लिटा देते हैं, कभी किसी को लिटा देते हैं, कभी हज़रत अकील को लिटा देते हैं, कभी खुद लेट जाते हैं। एक दिन पूछा आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ चचा आप ये क्या करते हैं? कभी आप हमको लिटाते हैं, हटाते हैं, तो कभी अली को लिटा देते हैं, कभी अकील को लिटा देते हैं, आखिर मसला क्या है? तो आपने फरमाया कि इस घाटी में पता नहीं कौन कहाँ पर बैठा हो और तीर लेकर के या तलवार लेकर के बैठा हो कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको शहीद कर दे, तो ये मैं गवारा नहीं करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाए। मैं कभी जाफ़र को लिटा देता हूँ, कभी अकील को लिटा देता हूँ,
کبھی خود لیٹ جاتا ہوں، کبھی علی کو لٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ جعفر چلے جائیں، علی چلے جائیں، عقیل چلے جائیں، حتیٰ کہ ابو طالب ہی جاں بحق کیوں نہ ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ خروچ نہیں آنا چاہیے۔ وہ ابو طالب کون؟ ابو طالب مولائے متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ابو طالب۔ کون ابو طالب؟ حسنین کریمین کے دادا ابو طالب، وہ ابو طالب جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے کہ اپنا پورا خاندان نچھاور کر دیا۔ جب بدر کا مقام آیا، رسالت کے دشمنوں سے بدلہ لینے کی جب بات آئی، تو ایک طرف بدر کے 313 مجاہدین تھے، 312 مجاہدین تھے، ایک طرف تنہا علی تھے۔ سب کے سارے ملائے تب علی کے برابر ہوئے۔ ابو یزید کی دادی کا مائکے کا جو قتل عام ہوا تھا، اس عورت کے دماغ میں یہ بات گھس گئی تھی کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ ابو یزید کی والدہ کا بنایا ہوا سارا پروپیگنڈا، سارا شریعنت جو تھا، وہ احد میں سامنے آیا۔ تاریخ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے بعد، ان کا سینہ چاک کرنے کے بعد، ان کا کلیجہ چبانے والی کون تھی؟ یزید کی دادی تھی، ابو یزید کی ماں تھی۔ اسلام کو زخم دینے والا خاندان فتح مکہ میں ایمان لے آتا ہے، جیسا کہ تاریخ کے پنوں میں درج ہے۔ لیکن وہ جو سامنت وادی ویوستھا کی سوچ تھی، وہ سوچ برقرار تھی۔ اسی سوچ کے مطابق ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی مولائے کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت شروع ہوئی، باغیوں کے ایک گروہ نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ یکے بعد دیگرے کئی جنگیں ہوئیں۔ مولائے کائنات خود فرماتے ہیں کہ اس حکومت کے عرصے میں ایک دن بھی چین سے مجھے بیٹھنے نہ دیا گیا، حتیٰ کہ حکومت کے طلبگار، حکومت کے خواہش مند لوگوں نے سازش کر کے عبد الرحمن بن ملجم کے ذریعے 19 رمضان کو مولائے کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوفہ کی جامع مسجد میں حملہ کروا دیا، جس کے بعد 21 رمضان کو مولائے کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں
रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। सबसे अहम गुफ्तगू जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो ये है, दुनियाए इस्लाम का वो पहला आतंकवादी हमला था जिसमें कुल्ले ईमान पर हमला करने वाला अपने आप को कलमा गो ही कहता था, अपने आप को मुसलमान ही कहता था, और उसने मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई, आपके वसी, आपके दामाद मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला किया। वो हमला जो मस्जिद में आज से 1400 साल पहले किया गया था, वो परंपरा, वो रविश आज भी बाकी है। हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया ये जान रही है कि आज भी मस्जिदों पर हमला करने वाले कौन लोग हैं और वो किसको हक पर मानते हैं। अबू यजीद को हक पर मानने वाले लोग आज भी मस्जिदों पर हमलावर हैं, और मौलाए कायनात को हक पर मानने वाले किसी एक शख्स का मुझे नाम बता दीजिए जिसने आज तक मस्जिद पर हमला किया हो। मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों का जो कत्ल कर रहा है वो वही फिरका है जो कल अबू यजीद को हक पर मानता था और आज भी अबू यजीद को हक पर मानता है, और पूरी दुनिया में प्लानिंग के साथ ये साजिश की जा रही है कि अबू यजीद की मानसिकता को, अबू यजीद की विचारधारा को, जो सारी दुनिया में सिर्फ उसी की विचारधारा के लोगों को मुसलमान मानते हैं, बाकी लोगों को काफिर मानते हुए उनका कत्ल करते हैं, उनको ख़त्म करने का जो निज़ाम कायम किया जाए उसी को अबू यजीद की विचारधारा यानी मुआवियावाद कहते हैं। मुआवियावादी विचारधारा ही आतंकवादी विचारधारा है। दुनिया में जितने भी आतंकवादी गिरोह हैं, चाहे वो देवबंदियों का आतंकवादी गिरोह हो और चाहे वो बरेलवियों का आतंकवादी गिरोह हो, ये सारे के सारे जो प्रेरित हैं ये मुआवियावाद से प्रेरित हैं, और मुआवियावाद से प्रेरणा पाते हुए ये सारी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को फैला रहे हैं। अभी कल अफ़गानिस्तान की शिया मस्जिद में हमला हुआ और वहाँ लोग मारे गए। काफिर काफिर शिया काफिर का फतवा दे करके शियों का कत्ल कर देना और सूफियों को राफजी ठहरा करके मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत करने वाले सूफियों को राफजी ठहरा करके शिया कहते हुए उनका कत्ल कर देना, ये मुआवियावादी विचारधारा है। और इसी पर अहले हदीस भी काम कर रहा है, इसी पर देवबंदी भी काम कर रहा है और इसी पर बरेलवी भी काम कर रहा है। ये तो पूरे आलम का मसला हो गया। अब मसला हिंदुस्तान भी मुलाहिजा फरमाइए। ये तो वाज़ेह हो गई बात कि चाहे वो मुहर्रम की ताज़ियादारी के अकायद का मसला हो, चाहे वो अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहने का मसला हो, चाहे वो महफिल सिमा का मसला हो, चाहे वो इल्म गैब का मसला हो, सारे के सारे मसाइल में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इन सब के नज़रियात लगभग एक से हैं, और इन तीनों की निगाह में ये मौलाई काफिर हैं, मुशरिक हैं, बिदाती हैं।
इसका फतवा ही देखते हैं। तीनों का नजरिया माविया को हक पर मानने का है। तीनों का नजरिया, यानी ये कुल मावियावादी लोग जो हैं, इनके सारे नजरियात आपस में एक हैं। और ये बात साबित हो गई। हिंदुस्तान के पस मंजर में जो मैं सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूं, कई बार इस बात को हमने साबित कर दिया है, प्रूफ के साथ साबित कर दिया है कि गैर मुल्की ताकतें जो हिंदुस्तान में खिलाफत का निज़ाम लागू करना चाहती हैं, ग़ज़वा-ए हिंद के ज़रिए हिंदुस्तान में गृह युद्ध करना चाहती हैं। और उस विचारधारा को समर्थन देने वाली जो विचारधारा है वो मावियाइज़म है। और मावियाइज़म के पैरोकार बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, ये सारे उसी विचारधारा पर चलते हुए हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम उन बारगाहों के बराबर हैं, लेकिन आज यौम शहादत मौलाए मुत्तकियान के मौके पर ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि मौलाए कायनात के वक़ार की कसम, सूफी खानकाह एसोसिएशन अपने मकसद में कामयाब हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान के सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि चाहे बरेलवी मुल्ला हो या देवबंदी मुल्ला हो या अहले हदीस मुल्ला हो, ये सारा मुल्ला अपने कौम के बच्चे बच्चे को रेडिकलाइज कर रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने पिछले 3 दिन से एक मुहिम चलाई थी, मावियाइज़म। इज़्म माने होता है वाद, यानी सोच। क्या ये माविया की सोच नहीं थी कि मौला अली से बगावत करके हम अपनी हुकूमत कायम करें? क्या ये माविया की सोच नहीं थी कि इमाम हसन को इतना परेशान करें कि वो सुलह पे मजबूर हो जाए और हम हुकूमत करें? क्या माविया की ये सोच नहीं थी कि हम यजीद को अपना उत्तराधिकारी बना करके हुकूमत करें? क्या माविया की ये सोच नहीं थी कि तमाम लोगों से हम यजीद के जो है हक में बैत करवा लें? ये सोच जो हुकूमत कायम करने वाली है, उस सोच की मुखालफत की, उस इज़्म की मुखालफत की जिसकी इजाज़त हिंदुस्तान का दस्तूर हमें देता है। हमने किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की, हमने उसके विचारों की आलोचना की, और विचारों की आलोचना करना यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़े तो आप हमको गालियां दे रहे हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए आप लाल किले पर जो है वो धरना प्रदर्शन कर लें, शाहीन बाग पे धरना प्रदर्शन कर लें, पूरे हिंदुस्तान पे धरना प्रदर्शन कर लें, किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लें, ये आपका राइट है। और दूसरा आदमी अगर अपना राइट का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको गालियां देंगे, उसको जान से मारने की धमकियां देंगे। बरेलवी, अहले हदीस और देवबंदियों ने PFI और दावत इस्लामी की हिमायत के साथ आज सूफी खानकाह एसोसिएशन को किसी न्यूज़ इंडिया नाम के न्यूज़ चैनल के ज़रिए जान से मार डालने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि सूफी खानकाह एसोसिएशन के सारे फर्दों को मार डालेंगे और काट डालेंगे। ये मार डालने की और ये काट डालने की जो विचारधारा है, ये पाकिस्तान प्रायोजित विचारधारा है। जो पाकिस्तान का मुल्ला खादिम लंगड़ा जो मर गया, वासिले जहन्नम हो गया, और मरदूद जलाली जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देखता है, और एक और मुर्दा मर गया जिसका नाम मुमताज़ कादरी था, जो पाकिस्तान का दहशतगर्द था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्ला इलियास पाखंडी, सब्जी बेचने वाला, दावत इस्लामी, दावत शैतानी का अमीर, इन लोगों के टिकट ये जो बनी हुई है चांडाल चौकड़ी, इस चांडाल चौकड़ी की पूरी प्लानिंग है।
भारत को बर्बाद करने की, भारत को की हुकूमत को पामाल करने की ये चांडाल चौकड़ी ने हिंदुस्तान में जगह जगह अपने लोगों को बिठा रखा है ताकि वो ग़ज़वा हिंद के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकें। याद रखिए, सूफी खानकाह एसोसिएशन कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुल्ला हो, कोई भी मौलवी हो, हिंदुस्तान के संविधान और कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई मन्नान रज़ा खड़ा हो जाता है, जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादी जलाली के बगल में खड़ा होकर के उसकी पुष्ट पनाही करता है। कोई असजद नाम का व्यक्ति फतवा दे करके जलाली की हिमायत करने लगता है। बम्बई में रहने वाला कोई कलीम रज़वी पाकिस्तान के आतंकवादियों की तारीफ करता है और कहता है क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लैपटॉप लेकर के घूमा करता है, उसका क्या नाम है, अरे क्या नाम है भाई, फारूक हनफी, वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। वो घोसी में रहने वाला जियाउल, वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। ये बरेलवियत पाकिस्तानियत बनती चली जा रही है। इनके जो जलसे होते हैं, मारने की बात की जाती है, काटने की बात की जाती है। किसी फलाने हजरत के अगर वो हो गए तो फेंक देंगे काट कर, आधा इधर आधा उधर। अबे वो हजरत क्या अल्लाह मियाँ हो गया है क्या? भारत के संविधान से बड़ा हजरत का फतवा है? हमारे हजरत का फतवा है कि होली में अगर रंग खेल दिया तो निकाह टूट जाएगा, फलाना टूट जाएगा। तेरे हजरत के फतवे से बड़ा है हिंदुस्तान का संविधान और कानून। रूबरू होकर के बात कह देना चाहता हूं, सुन लो बरेलवी मुल्लो, ये तुम लोग औरतों की तरह छुप करके फेक और फर्जी आईडी बना करके ये जो धमकियां दे रहे हो, हिम्मत हो, मैं शहर कानपुर परमपुरवा में रहता हूं, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, अगर एक ही बाप की औलाद हो तो सामने आकर के बात करो। 83/184 परमपुरवा जूही कानपुर में मैं रहता हूं। तुम्हारी पूरी दुनिया बरेलवियत में हिम्मत हो तो आकर के मेरा मुकाबला कर ले। मैं चोरों की तरह डरता नहीं हूं, जैसे तुम लोग फेक और फर्जी आईडी बना करके दहशत फैलाते हो। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के खिलाफ बातें करते हो। और दुनिया के लोगों, आप भी ये देख लें कि ये वो फिरके वाले लोग हैं, ये वो माविया के पैरोकार, माविया के मानने जानने पहचानने वाले लोग हैं जो फंसते हैं। पीएफआई के लोग आज नारा लगा रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमान इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत की बात कर रहे हैं। ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए लड़ रहे हैं। इनकी कानूनी मुखालफत करने वालों को ये जान से मारने की धमकियां देते हैं, हमले कराते हैं। तो ये सोचो, जब ये खुद मुसलमानों के साथ ये अमल करते हैं तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए इनकी क्या सोच होगी? हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए इनकी बरेलवी वालों, बरेली के मुल्लाओं की, देवबंदी मुल्लाओं की और पीएफआई वालों की ये सोच है कि हिंदुस्तान के हिंदू तो हिंदू, इनकी मुखालिफ मुसलमानों को ये मुसलमान नहीं मानते। और पिछले 1400 सालों से इनका ये एजेंडा चलता चला आया है कि ये मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते तो ये हिंदुओं को क्या मुसलमान मानेंगे? ये मुसलमानों को बड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला और हिंदू को खड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला कह करके कत्ल करते हैं। लिहाजा मेरी हिंदुस्तान के तमाम हिंदू और मुसलमानों से अपील है कि कट्टरपंथी ताकतों का साथ छोड़ते हुए आज हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हो करके इन ये जो ताकतें हैं, मावियावादी ताकतें हैं, जो बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस मुल्ला मौलवियों की मावियावादी ताकतें हैं, इन ताकतों को हिंदुस्तान की धरती से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ये मुहिम चला रहा है। आप लोग हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।